तो ऑनेस्टली आई फील इज कि आफ्टर सम टाइम यू डोंट गेट द काइंड ऑफ अप्रिसिएशन यू रिक्वायर। हाँ मतलब We need to आप really take देखो care ना, of आप आइसक्रीम ourselves. खा रहे हो तो उसमें आपके बच्ची का चेहरा देखो, शी इज गोइंग टू सफर फॉर दैट। सही Nice में, way, हाँ. सही में। Namaste, Suruchi. नमस्ते। Welcome to the podcast, and Yes. thank you so much for taking your time and Yeah. being here. Yes, thank you. Thank you It's for an inviting honor. me, actually. Yes. So we'll start with a little of what you are into. So you are CEO of Sachi Engineering. Right. So a little brief about what Sachi is into. My educational background is I'm mechanical engineer by qualification, and we are into project industry. तो जैसे आप सुबह कॉफ़ी पीते हो, इंस्टेंट कॉफ़ी पीते हो, उसमें शायद दूध की पाउडर डालते हो, या फिर आप रेस्टोरेंट में जाते हो, होटल में जाते हो, तो वहाँ पे वो दूध के सैशे रखे हुए होते, राइट. तो वो सभी जो प्रोडक्ट आता है वो अपने ड्रायर से आता है। तो अगर उसको बताना है तो इट इज स्प्रे ड्रायर्स एंड एवापोरेटर्स, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आप गोली खाते हो, इवन हर्बल एक्सट्रैक्ट्स जो यूज करते हैं, देज आर ऑल द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द इक्विपमेंट वी सप्लाई। Okay. It's very difficult sometimes to understand because it's a very niche field. So now I have made it a practice to explain it in that way. हाँ, for a common person to understand. हाँ, आप जो भी दवाई खाते हो उसकी जो पाउडर आती है वो शायद अपने ड्रायर से बनी होती है। अच्छा. जो कॉस्मेटिक्स यूज करते हो, इवन इन द लिपस्टिक्स एंड ऑल सॉर्ट ऑफ क्रीम्स दैट वी यूज, उसमें के जो बेस मटेरियल कुछ है वो शायद अपने इक्विपमेंट से आते हैं। Okay. आप बिस्किट खाते हो, उसमें के भी जो रॉ मटेरियल जो यूज होते हैं वो शायद हमारे इक्विपमेंट से आते हैं। सो इट्स अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, but it is normally if we have to say, it is dryers and evaporators we are dealing into. Great. And so you did your mechanical engineering. Yes. And after that, did you work somewhere or did you directly? No. I worked for 5 years. Okay. 5-6 years almost. And then later मेरी जब बेटी पैदा हो गई उसके बाद we both of us left the job. अच्छा, both of you were working with your husband. Yes. So he was also working somewhere. And yes, you were also we both working. were working together. Okay. We got married over there. Okay. 3 साल शादी के बाद भी जॉब किया, कंटिन्यू किया. Then we had a daughter, first daughter, and after when she was born, we decided that we should do something of our own, because otherwise it's very difficult to give time to our child. And our office also got shifted at a quite a long place. It was earlier in the city, which was little convenient for me, but then it got shifted. So that was not so convenient, because traveling time भी इतना जाता है, then you really don't have time. तो उसके लिए decide किया कि we will do something of our own. Okay. And that is what prompted us to we should start our own business. Okay. So you had a background of similar business में काम करते थे, so that you got into this? Yes. Similar background, because उसके सिवा कुछ आता ही नहीं है, ऐसा है वो। आज भी मैं बोलती हूँ क्यों ये बिजनेस में आए, क्योंकि उसके सिवा दूसरा आता ही नहीं था। I think वो clarity भी अच्छी clarity है कि this is what we know, so this is what we are going to know. This is what we know. So how many years now of Sachi? It's the same age of my daughter, 25. तो मैं उसका एज सीक्रेट बता देती, वैसा हो जाएगा। Not good for her, but yes, 25 years now. 25 years now. Yes. And you have been working with your husband, Marthu. So there are a lot of couples who are into business together, and this is a great opportunity for me to actually get a perspective from you. I also work with my husband, both of us work together. तो बहुत questions आते हैं मेरे पास भी कि कैसे करते हो? There are disagreements in work, and then work and home, family. So how do you separate both of them? How do you tackle professional disagreements with your personal harmony at home? How do you solve those disagreements? मैं बताऊं, हर एक कॉइन आप लोगे ना तो उसके दो साइड्स तो होते ही है। There are certain positives, there are certain negatives out of that. तो मैं पॉजिटिव्स पहले बताऊंगी। तो पॉजिटिव सबसे ये ज्यादा होता है कि वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज करना इजी होता है। अच्छा, मेरे हिसाब से, बिकॉज आई वॉज वेरी लकी, क्योंकि मेरा ऑफिस, घर और माई मदर्स प्लेस वॉज इन वेरी क्लोज विसिनिटी। तो बच्ची को बुखार है समझो, या फिर कुछ इमरजेंसी है, तो इट वॉज ईजी फॉर मी टू स्टे एट होम एंड वर्क फ्रॉम होम. Otherwise I wouldn't have got that. So when it comes to, because I always had a priority ki my family is my first, and then Sachi Engineering is maybe equal priority. Apart from that, all the socialization, जो भी बाकी commitments है, वो
नेक्स्ट प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी पे। तो इट वाज ऑलवेज दैट कि मेरी जरूरत घर पे है तो घर पे है, एंड इट इज, और वो मुझे सपोर्ट मार्थू का काफी अच्छा मिला कि मैंने कभी किसी रिलेटिव्स के लिए छुट्टी नहीं ली, मतलब वो मेरे इन लॉज के साइड से हो, मेरे साइड से हो, किसी के लिए हो, इट वाज ऑलवेज आफ्टर द ऑफिस आवर्स। बट मैंने छुट्टी हमेशा ली मेरे बच्ची के लिए कि उसको स्कूल में जाना है, या फिर उसकी कुछ पढ़ाई है, उसकी एग्जाम है, शी वांट्स मी एंड आई एम देयर। राइट राइट, तो प्रायोरिटी बहुत बहुत क्लियर थी पहले से। सो दैट वाज वेरी इजी, राइट, वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। So that is the pluses, obviously. The other plus is we complement each other very much. उसके जो positives है वो शायद मेरे में नहीं है, मेरे जो positives है तो उसमें है, और मैं उसके इतने aggressive हूँ नहीं, तो sometimes that is also required because it's very much required. Yes. So the good part is we very much complement each other. Great. With all that kind of pluses and minuses. I would say negatives में क्या है, and very much which honestly I feel. Yeah. So honestly I feel is कि after some time you don't get the kind of appreciation you require. Work-wise, or the credit you require, because front end is always the, मतलब Mr. Shanbag, Marthu Shanbag is the front end of everything. Okay. So all the credit is the given. person who is in the front will take all the credit. All the credit. Backend पे कितना जाता है ना, nobody appreciates that. Right. And that is the downside I always feel कि because you are also after a certain age, पेट भरने के बाद appreciation एक most important चीज होती है ना। बिल्कुल, right? बिल्कुल। तो that is one of the downside I would surely say. So when you talk about this appreciation, I think a lot of women, especially those who are working with husbands, would resonate with this. Yes. That work-wise होता है, but sometimes you feel you're doing a thankless job. हाँ. So when you're looking at appreciation, and from my understanding also, हम वो appreciation कहाँ से चाहते हैं? Are we expecting it from people in general, or we are just expecting it from our husband? Because शायद husband कर देता होगा acknowledge, but then are we expecting it from the world around? Everybody, I would say. Okay. Everybody. Not just वर्ल्ड अराउंड में कैसा है ना कि द पीपल जो आपके फ्रेंड्स है, जैसे आपकी सहेली है, तो उनके लिए आप रोल मॉडल हो, उनको आपके हस्बैंड नहीं पता है, राइट? यस, जो आपके साइड के लोग है, जो कॉमनली लोग है ना, उनको सिर्फ एक ही चेहरा दिखता है, I can understand totally. Yes, yes. और उसमें सभी लोग आ गए, सभी लोग आ गए. So how do you deal with that? क्या बोलते हैं हम खुद को फिर? मैंने एक ना हमेशा एक फंडा सीखा है कि आई डू इट फॉर माई सेल्फ, ओके? तो उसमें ना वो सैक्रिफाइस, ये वो ऐसी सब बड़ी बड़ी चीजें नहीं लगाने की, बिकॉज देन यू फील विक्टिमाइज, and that's the worst feeling that you can have. Worst feeling. तो आई डू इट फॉर माई सेल्फ. अभी उसमें कुछ रीजंस है. ऑब्वियसली द टाइम ही कुड स्पेंड इन द बिजनेस आई वाज नॉट एबल टू, बिकॉज आई आल्सो हैड टू टेक केयर ऑफ द फैमिली. But then was it a sacrifice? No, I did it for myself, right? मतलब मुझे मेरे बच्चों को एक तरह से पालना था तो पालना था. That was my decision. Nobody forced me to do that, right? So when it is for myself, it has to be that way. Now उसमें कुछ discomfort है तो है. वो एक्सेप्ट कर लिया. अभी ये भी फीलिंग है तो भी है. I mean, it is better to accept. It is better to accept. और अपनी पे खुद थपथपाओ ना. Why to wait for somebody else to? I think that is the best way forward. That is the best. और मैं फिर अपना now everything has to be marketed. ये तो अभी तो era ऐसा है. So मैं अभी market करना थोड़ा. You have to write your own story now. Right. Because I think we all have so many stories. Yes. But कहीं ना कहीं by living life ना हम वो stories को भूल जाते हैं. अगर हम खुद जाएंगे ना और लिखेंगे. So I think we will be inspired all over again. That if you could do it that time, and then you feel that किसी के appreciation की क्या जरूरत है? I mean, you have done so much of thing, you have come so much, मतलब long way आए हो आप ऐसे, तो फिर क्या जरूरत? That is the way I always think. तो कभी भी ऐसा लगता है ना कि अरे ये appreciation मेरा था. अभी तो मैं स्ट्रीता बोल देती. This is not common. This is not your work. This is my work. This is my hard work. क्या बात है. पहले ऐसे नहीं होता था. मतलब कैसा है ना कि we are always taught कि
to respect the husband and all To that, be humble. to be humble, you should be. Yeah. तो फिर उससे वो लोगों को थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि sometimes they really snatch your credit. तो ना अभी ना मैं वो करने नहीं देती हूँ. अभी मैं मेच्योर हो गई हूँ. हाँ. बट ये बताओ मुझे कि प्रोफेशनल डिसएग्रीमेंट्स होते होंगे ना कि हाँ, कोई yes. डिसीजन है रोज तो कैसे करते हो? Who wins? रोज. Is it about who wins or how do you तो approach it अर्लियर basically? अभी बीच में कुछ दिनों से ना, मतलब जब से मैं मेरी डॉटर्स अभी यहाँ पे नहीं है ना, तो आई गॉट मच मोर इन्वॉल्व इनटू द बिजनेस. Right. अर्लियर तो था नहीं इतना, हाँ. इतना थोड़ा सा. हाँ. और वो उस टाइम से वो डिसएग्रीमेंट्स ज्यादा बढ़ गए, राइट. क्योंकि आप पूरा घुस जाते हो तो फिर आप बहुत हाँ, बारीकी में हाँ. भी जाते हो. तो फिर शुरू में ऐसा हुआ कि हर चीज में झगड़ा, हर ठीक है. चीज में झगड़ा. नाउ आई हैव कम टू द टर्म्स कि ये झगड़ा करने से फायदा नहीं है ना, बिकॉज अल्टीमेटली यू एंड मी बोथ आर इन द सेम टीम, या है ना. वी आर नॉट प्लेइंग अगेंस्ट ईच या अदर. एंड उसमें ऐसा नहीं है कि हु इज बेटर, हु यू आर बेटर और आई एम बेटर, ये कंपटीशन है नहीं. बिल्कुल. जिस दिन ये समझ लिया ना, हाँ. उस दिन से अभी शांति है. देन आई लिसन टू हिम, आई अंडरस्टैंड व्हाट इज हिज इंटेंशन. और सडनली मेरी शादी को 28 साल हो गए, तो आई नो हाउ टू मैनेज हिम आल्सो. I think that's a very valid point. So when to tell, how to tell, what to tell. Very strategic approach. Of course you have to. You have to be. You have to. अब सडनली रिएक्ट करोगे तो हाँ. उसको वही मिलेगा ना, मतलब आप जो देते हो वही मिलेगा ना. वही मिलेगा. तो यस यू लिसन टू हिम, हाँ यस यू एग्री टू हिम, एंड देन लेकिन थोड़ी देर के बाद बोल सकते हो कि ये अगर ऐसा होता है तो कैसा लगता है तुमको. Okay. He also gets a chance, he also calms down till that time. Yeah. झगड़ा करने से क्या होता है, then he is always in his point of view, I am always in my point of view. Doesn't तो work उसे out. कुछ what I thought, that is how people are taking advantage of that, and it's हाँ. very damaging. The way the team will look at you. Yes, Yeah. because they see कि you are totally opponent. And that is how I absolutely realized, and now it is. At least no matter how many disagreements you have, the world has to see you as one. Your Yes. team has to see you Yes. as one. Yes. I think that is the bigger picture should always be there in Yes, front of us. yes. I think that will help us take decisions also accordingly. Of course, and professional disagreements तो रहेंगे ना, मतलब कैसा है कि घर पे होते हैं तो in the small things also we have disagreements. Right. तो प्रोफेशनली तो होंगे ही, बिल्कुल. बट कैसा होता है कि अल्टीमेटली इंटेंशन तो सबका यही है ना. That the किसी का इंटेंशन ये नहीं है कि ग्रो नहीं कर रहा है. बिल्कुल. He has got his own ways, हाँ. I have got my own ways. Right. बट अभी तो बहुत साल हो गए. सर्टन एरियाज ही लुक इनटू, आई डोंट इंटरफेयर. सर्टन Right. एरियाज वो क्वाइट डिमार्केशन है. हाँ. बहुत ज्यादा है नहीं, देयर इज अ स्टिल मिक्स अप, but still majority of the areas there are there. I think over a period of time we also come to understand that ये मेरी strength है, ये मेरे partner की strength है, तो वो धीरे धीरे हो जाता है. You start becoming better at Yes. what you are doing. और उसमें कैसा है ना कि हर एक की पर्सनालिटीज भी आती है ना. नाउ आई नो हिम, उसको हर चीज में आना है, तो आई लेट हिम कम. वो अपने आप बाजू हो जाएगा, मुझे पता है. कि ये मेरे बस का नहीं है. This is not my cup of tea. that is how I have now हाँ. come to the terms. ऐसे कहते हैं that women are multitasking, so a lot of operations actually goes into the hands of the woman if both of them are working. So what do you think about that? I mean, do you resonate with that कि हाँ होता है, I'm better at operational things? मेरे इसमें even Marthu is much better at multitasking. Okay. Yeah, even मतलब है, women are better in multitasking, but he is also much better. Okay. Yeah. तो ऐसा let He, us not generalize things कि ऐसा ही होता है. ऐसा नहीं है. He is also much better. Mhm. Only the thing is, वो हर एक चीज में इतनी डीपली नहीं जाएगा, which I will go. Okay. हाँ, मतलब but he is equally good, I would say. He's Okay. equally good. Okay, great. Since I've seen you, I've known you for quite some years now, and you have been a fitness freak. I mean, I see your videos sometimes which you post. तो मुझे लगता है कि एक होता है आप एक्सरसाइज करते हो, जो मैं करती हूँ कि हाँ ठीक है मुझे ठीक रहना है, बट एक होता है द वे यू डू एक्सरसाइज. ऐसा लगता है कोई तो भी एक बहुत बड़ा पर्पस है, एक बहुत बड़ा ड्राइव है, which
which makes you give all out to your exercise routine, to the way you do fitness. So would you like to share something on that aspect of your life? मैंने एक्चुअली मेरा फिटनेस चालू करने का एक बहुत रीजन था, एंड द रीजन वाज इतना फिटनेस फ्रीक थी नहीं मैं, मतलब अभी भी फ्रीक नहीं हूँ, बट डिसिप्लिन्ड हूँ, आई वुड से डिसिप्लिन्ड हूँ. तो मुझे एक बार वो सोर थ्रोट हो गया और बहुत बुरी तरह से हो गया, तो आई वॉज इल फॉर फ्यू डेज. और जैसे वो ठीक हो गया तो मैंने कुछ खाने का था, आई डोंट रिमेम्बर व्हाट इट वाज, और मैंने वो बनाया सुबह सुबह, और सब लोगों ने टेबल पे बैठ के अच्छी तरह से खाया, और मेरा गला इतना दुखने लगा, आई कुडंट ईट, आई कुडंट एंजॉय. तो फिर मुझे लगा अरे किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है फिर, बिकॉज एवरीबडी इज एंजॉयिंग, इट्स ओके, दे अप्रिशिएटेड माय एफर्ट्स, दे अप्रिशिएटेड एवरीथिंग. तो फिर मुझे लगा देन इट्स अ सिन टुवर्ड्स मी इफ आई एम नॉट फिट, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू एंजॉय देन दीज काइंड ऑफ थिंग. और फिर मेरा टेक केयर तो मुझे ही करना है. व्हाई somebody else should do it? Why somebody else should spend their even few days of their life just looking after me? And that was a motivation that really created. और अभी मैंने जैसे बोला I do it for myself. हाँ, वो तो है ही है. और वो कैसा है ना कि I always feel वो एक छोटा सा स्टार्टिंग ट्रबल होता है सुबह. If you just overcome that, तो फिर आज ऐसे ही हुआ. I regularly have 6 to 7 yoga class. Today I got up 6:15 क्योंकि वो अलार्म बजा था, मैंने स्नूज की जगह ऑफ कर दिया. थोड़ी देर सो लेती हूँ करके और फिर अभी बोला कि अभी जाने में मतलब नहीं है. बट देन आई गॉट आउटसाइड ऑफ बेड एंड डिसाइडेड नहीं आज तो मुझे खुद से करना है, लेट इट बी. नहीं तो फिर मैंने स्टार्ट किया एंड आई कुड कंप्लीट 48 सूर्य नमस्कार. आई डिड दैट. सो फिर मुझे ही अच्छा लगा कि चलो क्लास मिस हो गया, लेकिन फिर एक्सरसाइज नहीं मिस हो गया. एंड सेम थिंग इज अबाउट फूड. सो व्हाट आई फील इज कि व्हाट यू पुट इन यू आर लाइक दैट. सो व्हाई कमिट सच अ बिग सिन टुवर्ड्स योर बॉडी व्हेन यू नो दिस इज नॉट गुड फॉर यू. अवेयरनेस है तो फिर क्यों करे उसको. पहले तो चलो ठीक है किया क्योंकि अवेयरनेस था नहीं, पता नहीं था क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और सब मतलब सुनी सुनाई बनी बनाई बातें होती थी कि ये कोई बोलता था ये अच्छा है तो उसको खाओ. बट नाउ यू नो, एटलीस्ट नाउ आई थिंक वी हैव एक्सेस टू सो मच इंफॉर्मेशन. और मुझे हमेशा लगता है कि मतलब कभी कभी लगता है मुझे, एंड इट्स अ वेरी ऑनेस्ट थिंग, जैसे ओल्ड एज हो जाए, आई एग्री वी शुड टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स, एवरीबडी एल्डरली एट होम्स. आई नॉट अगेंस्ट दैट, नॉट एट ऑल अगेंस्ट दैट. बट बुरा इस चीज का लगता है कि उनके जो बेटे जो रहते हैं ना, दे हैव समटाइम्स दे हैव टू लीव देयर करियर जस्ट टू टेक केयर ऑफ देम. एंड देन दैट इज आई फील कि तो फिर आप क्या कर रहे हो ना, मतलब क्या ये पाप नहीं है? I mean, है ना, उनके प्राइम इयर्स छोड़ रहे हैं टू टेक केयर ऑफ, जस्ट टू टेक केयर ऑफ यू, बिकॉज यू डिडंट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. है ना, बहुत मतलब just because you didn't take care of yourself, they have to leave their everything. They could have been such an asset to the country also. है ना, मतलब कंट्री छोड़ो, खुद के घर के लिए एसेट बन सकते थे. I've seen so many of people around me also कि नहीं वो कर नहीं पाते हैं क्योंकि nobody is there to take care of them. So फिर वो एक हमेशा है मेरे लिए ड्राइविंग फोर्स. एंड आई थिंक दैट इज सच अ ग्रेट स्टोरी टू लिसन फ्रॉम यू, टू यू नो, बिकॉज बहुत सारे लोगों को है अवेयरनेस ना सुरुचि, सबको पता होता है, लेकिन पता होने से कुछ नहीं होता, नहीं होता है. इट इज नेवर द नॉलेज, इट इज नेवर द फैक्ट that will bring any change. It is that I think you realized it. that yes, कि हम बच्चों को क्या आशीर्वाद देते हैं, जुग जियो, अच्छे बनो, सफल बनो, उसके लिए इतनी मेहनत करते हैं. I mean you put them to good school, good universities, you arrange monetary things, सब कुछ, everything you do for them, right? ये क्लास को लगाओ, उनका ओवरऑल ग्रोथ हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उसके लिए हम स्पोर्ट्स में भी डालते हैं, क्रिएटिविटी में डालते हैं, आर्ट्स में डालते हैं, और फिर क्या करते हो आप? Just because you don't take care of yourself, they have to leave everything. Because I've seen people, US में अच्छी जॉब है, फिर छोड़ के आते हैं because तो nobody is there to take care of parents. I'm sure you are interviewing so many people, तो बहुत सारे आते होंगे आपके पास. इंटरव्यू के लिए भी जो लोग आते हैं ना, मतलब they are very young, and especially
people who have crossed 35 40s in their 40s now because their parents are very old, nobody was there to take care of them, so they leave the job for few days और फिर उसके बाद जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, वेरी डिफिकल्ट। एंड नॉट ओनली विमेन, इवन मेन आई सी, मतलब सिर्फ इसमें not just women, even men का भी यही problem होता है. That is one of the reason, not always, but that is one of the reason. Then I feel कि why I should be the hurdle for somebody else's progress. क्या बात है, this is so inspirational. Yeah. This is that keeps me actually. Yes, and I'm sure कि ये वाली जो sharing है ना, I'm sure a lot of people can pick up so many things from this that हाँ, मतलब we need to आप really take देखो care ना, of आप ourselves. आइसक्रीम खा रहे हो तो उसमें आपके बच्ची का चेहरा देखो, she is going to suffer for that. सही में, हाँ, सही में, वो जो सबसे ज्यादा जिसको आप प्यार करते हो ना, बस उसका चेहरा देख लो तो आप she is going to suffer because you ate that sugary ice cream. हाँ, और once in a while still it is okay, because you also have to satiate your kind of things also, but still it is okay. But still it is okay. Yes, you have to have that balance. So you are in a dominant, it's a manufacturing unit that you are heading. So do you feel that वो male dominant है and it is difficult for you to get work done from people? ऐसा कुछ होता है? Yeah, it's just fine whether you are getting work done or your husband is getting work done. It's yes, it is there. It is there. I won't deny this. I won't deny this. But मेरे लिए कैसा है ना कि मार्तू है ना कभी. And you also have an organized structure in our organization. So KPIs है, KRA है. So certain things they have to do. There are people to manage some sort of small operations also, which you don't have to tell them. Okay. And पहले लगता था, अभी वो जितना स्ट्रक्चर्ड होते जा रहा है, ऑर्गेनाइज्ड होते जा रहा है, तो इतनी मुश्किल नहीं होती है. Okay. So you have consciously worked on putting in a lot of systems in your industry. Yes. Okay. And you've taken help from outside consultants. Yes. So many of the, मतलब आपको तो पता है, MG has helped a lot. Actualize has helped a lot into putting HRMS systems. Okay. Great. आज भी मुझे वो MG सर ने जो बताया है ना, वो आज भी मैं implement, I will do it for lifetime. मैं आज भी करती हूँ. उन्होंने मुझे बोला कि आप मिर्ची, पुदीना या कोथिंबीर खरकते हो तो छान के लेते हो ना, तो आदमी लेते वक्त क्यों नहीं लेते हो? क्या बात है. हाँ, and I have been attending all the interviews right from trainee engineer. Okay. Only the interview which I don't attend when I am not in Pune. अच्छा. मैं सारे इंटरव्यूज लेती हूँ फिर. I think ये एक बहुत बड़ी चीज है ना, which I think all entrepreneurs should imbibe. They feel that interview लेना जो है ना, वो HR का काम है, या फिर डेलीगेट कर देते हैं, जूनियर का काम है. I think that is the biggest mistake that an entrepreneur makes, क्योंकि आप परिवार बना रहे हो ना अपना, आप अपना कल्चर बना रहे हो, और अगर आपका उसमें से नहीं होगा, so I think ये बहुत important चीज है that you are taking all the interviews. You've raised two beautiful, talented daughters, and I know a little bit about them. They're brilliant and they're doing very well in their careers. So how was it like managing business and then raising daughters? Especially there is a lot of thing about unko protection. They need to be nurtured in a different way because the growing up is different. So would you like to share anything about that journey of being a mother? आपने जैसे पूछा ना कि एक्सटर्नल कंसल्टेंसी लिया, तो ये जो कंसल्टेंसी, मतलब जो भी कोच है कंसल्टेंसी, तो उनका काम ना मैं समझती हूँ कि इट्स नॉट जस्ट प्रोफेशनल लाइफ, इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स योर पर्सनल लाइफ. ठीक है. बिकॉज यू चेंज द वे यू थिंक अदरवाइज. तो जो ऑर्गेनाइजेशन में आप लगाते हो ना, वही आप स्ट्रक्चर घर पे भी लगाते हो. तो देर आर सर्टन थिंग्स मतलब अगर विमेन इन आवर सोसाइटी वो सुपर मॉम बनना चाहते हैं या सुपर वुमन बनना चाहते हैं, आई नेवर वांटेड दैट. मेरे को कोई किताब चाहिए ही नहीं, एंड दैट वाज वेरी क्लियर टू माय डॉटर्स आल्सो. ओके. बिकॉज माय कभी ऐसा होता था, माय यंगर डॉटर ऑलवेज यूज्ड टू से कि व्हाई यू आर वर्किंग, एंड बिकॉज वो देखती थी ना कि उसके कुछ फ्रेंड्स के मॉम्स उनको स्कूल लेने आते हैं, फिर उनका वो बीसी या इसका सब ऐसा ग्रुप होता है, एंड देन
उनके बच्चे फिर फ्रेंड्स हो जाते हैं, Yes. फॉर देम दे हैव टू गो एंड गेट द फ्रेंडशिप, Right. ये तो इजीली हो जाता ये है। easily हो जाता है। फिर इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट देम एज अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। राइट। तो वो मुझे हमेशा पूछती थी कि वाई यू हैव टू वर्क, वाई यू आर नॉट वर्किंग। तो मैंने उसको अच्छी तरह से बैठ के समझाया। सो डायलॉग वाज द मेन थिंग, व्हाट आई फील इज। बाकी सब मतलब आप सुन के लो और समझाओ, वो काफी हद तक वर्क करता है। अभी आई डोंट नो, आई ऑलवेज हैव द एक्सपीरियंस ऑफ रेजिंग गर्ल्स, और मुझे फिर लोग बोलते हैं कि नहीं बॉयज अलग होते हैं, गर्ल्स अलग होते हैं, होता होगा, आई डोंट नो दैट। हाँ, but this dialogue thing ना, I still remember I used to go for programs with Manish. So sometimes it was like 6 days, 7 days. My life program was for 7. I had to take out 7 days. So they were a year, 2 years. तो तब मैं छोड़ के आती थी। तो initially 2-3 years तो they didn't understand. But the moment they started understanding, I used to communicate to them. Correct. 2 months prior that I will be going for this program. It is important. It is required. I need to be there. And I think why don't parents, communicate very, very truthfully, very, very openly? Right. Children understand. Children understand. I mean, they are so understanding that they would say, even when they had their boards, and I said, "Ehsaas is happening," and तुम्हारे boards, they said, "What will you do here? हाँ. क्या करोगी? You go for your program. Yes, you will do it." Yes. So I Even think for it me is also. मतलब, और मैंने ये कभी नहीं बोला कि नहीं अपने को मॉनिटरी जरूरत है, मुझे काम मैंने हमेशा यही बोला कि ये मेरी जरूरत है, दिस इज फॉर मी, बिकॉज मॉनिटरी हो नहीं हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ये मेरी जरूरत है। I think those truthful heart to heart conversations that always work. That has always worked. So there is, and I think, and you have to build certain kind of support system, like ecosystem तो होनी चाहिए, मतलब that is there. I think वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है कि ये टाइप के जो मतलब कोई भी आपका भी प्रोग्राम है या फिर इवन लैंडमार्क वगैरह जो भी है ना, दैट रियली हेल्प्स यू टू द वे अदरवाइज यू वुड हैव थॉट कि सभी खुद करो, सभी काम खुद करो, नहीं मेरे बच्चों को फिर मैंने ही खाना देना चाहिए। सारा मदरहुड वही निकलता है, मेरे हाथ का बना हुआ खाना और मैंने ही खिलाना चाहिए, सब मदरहुड का स्टैंपिंग वहीं से आता है। आई थिंक बहुत हमने देखा है ना। तो मैं हाथ से भी खिलाती हूँ, आज भी खिलाती हूँ, मतलब मेरी बेटी, बड़ी बेटी तो शी इज 25, मैं आज भी उसको हाथ से खिलाती हूँ, क्योंकि फिर वो ऐसे बैठ जाती है, अभी तू खिला। तो वो मोमेंट स्पेशल हो जाते हैं ना। हाँ, बट दैट इज ऑल्सो देयर, इट्स नॉट एवरी डे अभी तो। और हमें शायद अपना एग्जिस्टेंस और अपनी वर्दीनेस वहां से नहीं निकालनी चाहिए कि अगर मैं ये कर रही हूँ तो मैं वर्दी हूँ, या फिर मैं ये कर रही हूँ तो मैं एक अच्छी माँ हूँ। कहीं ना कहीं हमने स्टैंपिंग चाहिए होती है। करेक्ट। और वो जो स्टैंपिंग है ना, वो शायद समाज ने बनाई हुई है कि कोई माँ ऐसी है तो अच्छी है। तो आई थिंक वो जो डेफिनेशंस है ना, वो चेंज होनी चाहिए। राइट। और मैंने एक बार मेरे डॉटर से पूछा था कि तुम्हें मेरे लिए ऐसा, मैंने कुछ तो अलग क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज, कि क्या लगता है तुम्हें कि व्हाट इज माय रोल लाइक इन योर थिंग्स। तो उसने मुझे बोला था कि एक अच्छी बात बताई, बड़ी बेटी ने, उसने मुझे बोला कि नो मैटर व्हाटएवर आई डिसीजन आई टेक, इट मे बी रॉन्ग, इट मे बी राइट, बट आई ऑलवेज नो यू आर देयर फॉर मी। क्या बात। वेदर यू एग्री और don't agree to my decision, but you're there for me. Arey वाह। And I think that's a very beautiful question that you asked your daughter. That what am I in your life? Right. Amazing. And now they say, my छोटी बेटी तो she says now, I'm very proud of you. पहले वो बोलती थी आप working क्यों हो? हाँ। To the things कि I'm very proud of you. क्या बात है। I think फिर और कुछ नहीं चाहिए होता है। सिर्फ आपके बच्चों से एक ये लाइन मिलती है तो it gives you all the more strength to go on and on. तो I mean, communication is required, so that they don't they take the decisions, but they should know there is a fallback mechanism. तो कोई भी decision वो जो लेते हैं सही हो नहीं हो, तो एक बहुत अच्छा है ना, मातरिया से मैंने एक सुना था कि to make your decision right, you have to take multiple decision. Right. To make your decision right. तो कोई भी decision अपने आप में सही गलत नहीं होता है, उसके बाद दूसरा डिसीजन लेना पड़ता है टू मेक दैट फर्स्ट डिसीजन राइट। एंड इट इज पॉसिबल, डिसीजन गलत हो गया, बट देयर इज ऑलवेज अ यू टर्न, राइट, कम बैक। Very nice listening to whatever you had to share.
and I think जो भी सुनेगा they'll also get a lot of inspiration. Thank you. And I'm sure कि बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ realize होगा. Right. So thank you for your time. Thank you for being here. Yes, thank you And for. it was lovely actually- talking to you. Thank you.